A warm good afternoon to one and all. SNJB's College of Engineering welcomes to all of you to today's session on stress management for teaching professionals by Mrs. Priyanka Nair. It's an honor and privilege to introduce today's guest of honor. We have with us today Mrs. Priyanka Nair. She has been working in the field of blogging for the last 3 years and has been promoting mental health through her blogs and videos. Here's a brief about her. Founder of Sanity Daily, spreading mental health awareness through her blogs and YouTube channel. She started her journey as a personal blogger with her first blog, Virtual Siyahi, when she was diagnosed with lymph node tuberculosis and dealt with mental health issues for the first time. With the popularity of her personal blog in 2 years, she came up with her own venture, Sanity Daily. She has won awards for her first ebook, 26 Days, 26 Ways for a Happier You. And she made it free to download on her website, Sanity Daily. This book was among the top non-fiction list of Women's Web in 2019. She conducts independent workshops on stress management at NGOs. She has recently published a Hindi poetry book, Ardha Viram, which is available at Amazon. Priyanka started with 2 initiatives in the last 6 months. First, named Humanity Ki Chain, a mental health awareness video series on her YouTube channel, where she invites guests to share their views, personal stories on mental illness, aimed to enable people to talk and raise awareness. Second initiative, Letter of Compassion, where she sends handwritten letters to 12 people every month who are connected to her in virtual world or who wants a letter from her as a reminder of self-worth and self-awareness. She is an MBA with 6 years of work experience, but she received her calling as a medium to spread mental health awareness. She decided to upgrade herself in this field. At present, she is undergoing a NLP training and is also a mindful practitioner. She is slowly embarking her journey from a blogger to an entrepreneur. Her work has been featured at esteemed platforms like Shiroi's Story and Youth Ki Awaaz. Now, I request our principal, sir, Dr. M.D. Kokate, sir, to welcome Mrs. Priyanka Nair with brief introduction of our institute. Thank you, madam. Hello, friends. Good afternoon. I am Dr. Mahadev Kokate, principal of Sri Neminath Jain Brahmacharya Ashrams, late So Kantabai Bahorlal Ji Jain College of Engineering, Chandwar. Today, Department of MBA has organized an online session on stress management for our teaching faculty. It is my privilege to welcome today's guest speaker, Priyanka Nair, founder of Sanity Daily, HODs, and all faculty members. Madam, let me introduce our organization in brief. SNJB Education Society was established in 1928 with 3 students. Now it has evolved magnificently in the recent past. At present, catering the need of education from KG to PhD of more than 13,000 students in various disciplines. Our engineering institute is established in 2004 and is permanently affiliated with Savitribai Phule Pune University. We do offer undergraduate programs in civil engineering, computer engineering, electronics and telecommunication, and mechanical engineering. This year, we have started a new program looking to the new dimension of the market demand. We have started artificial intelligence and data science from this academic year. Also, we have one PG program in MBA. We got the accreditation from NAC with A grade and with the highest CGPA among all the nearby engineering colleges. And it is also awarded with the best professional college award by Savitribai Phule Pune University. In recent past, we stand among the top 200 engineering institutes in across the country
in the recent survey made by India Today ranking. Our young dynamic faculty members, staff members, and visionary management, and the honest and sincere students are the backbone of the development of our engineering institute. In last couple of years, we have observed gradual growth in placement as well as in the packages offered. We have also started the effective implementation of the entrepreneurship development skills among the students. Dear friends, in January 2020, the World Health Organization declared the outbreak of COVID-19. From March of this year, we are in the series of lockdowns, and now we are experiencing the unlocking series in sequence. The public health authorities around the world are acting to contain the COVID-19 outbreak. However, this time of crisis is impacting our lives in multiple ways, which is generating the stress throughout the population. Today's session will definitely help you all to have a mental and psychological well-being. Please enjoy this session and become stress-free. Once again, I welcome Priyanka Nair and all the participating audience to this session. Thank you. Thank you, madam. Over to you. Thank you so much for such a wonderful introduction about your institute, and thank you so much for giving me this opportunity, sir. I hope I'm visible and audible clearly. Yes, ma'am. Okay. Hello everyone, namaste. मेरे बारे में काफी brief में यहाँ पे detailed description introduction हो चुका है, so I won't waste time in introducing myself furthermore. But I would just like to add few things that even I have been through severe mental health issues. As Preeti ma'am rightly said, I was diagnosed with an illness 3 years back. And that was the time I faced कि depression होता है, anxiety होती है, and how it feels to get stuck. Because I was working before that, and उसके बाद जब आप suddenly बिस्तर पे हो, you are bedridden completely, you cannot move, you cannot just do anything, and I have a baby also. तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना, हम सब में रेस्टलेसनेस आती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, और ऊपर से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, क्योंकि ऐसी बीमारियों में इलाज में खर्चा होता है, आपको अपनी जॉब छोड़नी है. तो मैंने फर्स्ट टाइम वो रेस्टलेस और हेल्पलेसनेस फील की थी, जिसने एक तो मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था बिकॉज ऑफ दिस इलनेस, उसके अलावा फिर ये एक और चीज़ मेरे अंदर स्ट्रेस का कारण बनती जा रही थी. आफ्टर दैट ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इस तरह से बैठे बैठे उसी चीज को सोचने से तो मैं और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी, क्योंकि बच्ची उस वक्त मेरी सिर्फ 2.5 साल की थी. सो आई हैड टू लुक आफ्टर हर. ओके, आई वांट टू आस्क वन थिंग. हिंदी इंग्लिश दोनों कंफर्टेबल है, राइट? Yes, ma'am. है ना? Okay. So that was the time when I thought that I have to do something. Treatment will take 1 year, and to keep myself engaged और इन thoughts से खुद को दूर रखने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा. So I had a laptop, and लिखने का शौक मुझे काफी टाइम से था. तो मैंने अपना एक ब्लॉग क्रिएट किया. मुझे कुछ पता नहीं था क्या होता है नहीं होता है, ब्लॉगिंग क्या होती है, लिखने से क्या होगा, क्या मिलेगा, नहीं पता था. But I just started writing, and I'm telling you, it helped me a lot. उसने मुझे लिखने, सिर्फ एक लिखने से मैंने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसजेंडर जो जर्नी होती है ना, ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, उसका एक्सपीरियंस लिया है. एंड टुडे आई एम हियर. एंड सबसे बेस्ट पार्ट इस चीज़ की ये है कि आप अपने एक्सपीरियंस से किसी और को एक सर्वाइविंग गाइड की तरह आप हेल्प कर सकते हो, कि जब हम निकल के आ सकते हैं तो आप भी आ सकते हो. तो इसमें जो सेटिस्फैक्शन और कंटेंट मुझे मिलता है वो मुझे मेरी जॉब से भी नहीं मिलता था. सो दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैंने ये काम किया, और मैं बहुत मन से ये काम किया करती हूँ. सो before we begin, I would like you all कि आप लोग अभी अपना स्ट्रेस लेवल जो है, आई एम श्योर अभी तो आप अच्छे लाइट मूड में होंगे, मे बी कि कोई नया आया है क्या बताएगा ये सुनने के लिए. बट आई वुड जस्ट वांट कि आप लोग अपना जो स्ट्रेस लेवल अभी है उसको एक 1 to 10 के स्केल पे रेट करके माइंड में या कहीं लिख लें. 5, 10, 0 भी हो सकता है किसी का, या किसी को कोई अंदरूनी परेशानी होगी और वो किसी को बताना नहीं, आप अपने पास लिख के रखिए. इसे हम सेल्फ चेक इन कहते हैं. जब भी हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, तो उसके पहले और उसके बाद हम कैसा फील कर रहे हैं ये आप खुद चेक कर सकते हो. तो इसे हम सेल्फ चेक इन कहते हैं. तो आई जस्ट वांट यू ऑल टू स्केल योर स्ट्रेस लेवल एट दिस मोमेंट, और वो लिख के 1 to 10 की रेंज में आप अपने पास रखिए. आपको किसी को नहीं दिखाना है वो. सो
टीचर्स को पढ़ाना या टीचर्स को सिखाना ऑब्वियसली मुश्किल होता है क्योंकि वो हम सबको सिखाते हैं, बट आज मैं आपकी फ्रेंड हूँ और आई जस्ट वांट कि आप भी मेरे फ्रेंड्स की तरह मुझे सुने और इस छोटी सी मेंटल हेल्थ के सेशन में से जितना हो सके ले। आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। सो जैसा कि सर ने अभी कहा कि हु ने ये डिक्लेयर किया था, ये कोरोना वायरस आउटब्रेक का नॉर्मल लाइफ्स में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है ना, फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, हर तरह से। आई मीन हर वर्ग के इंसान को इसने हिट किया है, नॉट बिकॉज गरीब है या अमीर, अमीर गरीब, आई थिंक पूरे पावरफुल नेशंस की भी बोल सकते हैं एक ही हालत है आज। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर ऑन द सेम पेज, आज सबकी एक जैसी हालत हो गई है। बट कहीं ना कहीं इसने हमें कठिन परिस्थितियों में कैसे हम निकल कर आ सकते हैं ये भी चीज सिखाई है, कम में कैसे जिया जा सकता है ये भी सिखाया है। शुरू के जो दिन थे जब सडनली डिक्लेयर कर दिया गया था कि फुल लॉकडाउन हो जाएगा, कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था ना, किसी को भी पता नहीं था, अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, एंड इट जस्ट सडनली हमारे ऊपर आया। शुरू के 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, देन हमने अपना नया नॉर्मल बनाना शुरू किया है ना। दिस वाज अ नॉर्मल, अभी भी नॉर्मल नहीं है, अभी भी हम आराम से बाहर घूम नहीं सकते, कितनी चीजें हम कर नहीं सकते, बट हमने अपना नॉर्मल खुद क्रिएट किया है। सो इसका मतलब ये है कि हम ह्यूमंस, भले ही हम किसी भी एज के हों, हम छोटे हैं या बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को इसने इफेक्ट किया है, बट सबने अपना नया नॉर्मल क्रिएट किया और उसको अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम केपेबल हैं, हमें खुद को ही नहीं पता है कि हम कितने केपेबल हैं। तो शुरुआत यहीं से करना चाहूंगी कि कोविड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई थिंक हमारी पूरी जनरेशन जो है, हमारी और हमारे बच्चों के लिए ये एक बार बार ये एग्जाम्पल हम अपने बच्चों को और आने वाले लोगों को भी देते रहेंगे कि उस टाइम हमने कैसे ये चीजें डील की थी और इन चीजों से कैसे सामना किया था। नाउ यहाँ बात मेंटल हेल्थ की मैं करूँ, मैं आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। आई जस्ट शेयर द स्क्रीन विथ यू। So can you see the screen? Yes, madam. Okay, okay, sir. Yeah. जैसे कि आप लोग टीचर्स हैं तो आई एम श्योर आप लोग डेफिनेशन से पहले जाना चाहेंगे, तो मैं पहले डेफिनेशन से, आप जबकि मालूम है, पर एक चीज होती है जो काफी बार मामूली और नॉर्मल सी चीजों की भी हम इस तरह से डिस्कशन नहीं करते हैं। हम फैमिली में बैठ के कभी ये स्ट्रेस क्या होता है, क्यों होता है, या लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन नहीं करते थे। बट ये कोरोना के टाइम से एक चीज हुई है जो अच्छी हुई है कि लोगों ने मेंटल हेल्थ को तवज्जो देना शुरू किया, मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट होती है ये मानना शुरू किया। तो आज हम इस बारे में खुल के कॉन्वर्जेशंस कर पाते हैं। सो व्हाट इज स्ट्रेस? अ मेंटल और इमोशनल अपसेटिंग कंडीशन जो हमें बोलते हैं ना, मेंटली इमोशनली हमें जो तोड़ देता है, परेशान करता है अंदर ही अंदर, क्योंकि ये घाव जो बोलते हैं ना, इंटरनल वुंड्स हैं, ये बाहर दिखाई नहीं देते। आपको चोट लगती है वो दिखता है लोगों को, तो लोग आ जाते हैं उस पर मरहम लगाने, पर जब अंदर से परेशान होते हो ये किसी को दिखाई नहीं देता है। इट डिस्टर्ब्स यू इमोशनली इनसाइड, है ना। और टेक्निकली साइकोलॉजिकली बोला जाए तो हमारा जो रिस्पॉन्स या रिएक्शन एक सिचुएशन में होता है, वो हमारी जो बोलते हैं ना, इट आवर रिस्पॉन्स टू एडवर्स एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और नेगेटिव सराउंडिंग इज व्हाट स्ट्रेस इज। अक्सर स्ट्रेस हम नहीं उत्पन्न करते खुद में, है ना, यूजुअली एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं या हमारे आसपास का जो समाज है, सोसाइटी है, जजमेंट्स हैं, लोगों के ताने हैं, लोगों के जो बोलते हैं ना, लोग हमें आंकते रहते हैं, ये सब चीजें हमारे स्ट्रेस का कारण बनता है। आप सब टीचर्स हैं, तो आप लोगों के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ऐसा लगता है शायद ये होता होगा कि जस्ट बिकॉज आप टीचर्स हैं आपको सब पता होना चाहिए, आपको भी गलत नहीं हो सकते। और आप जब घर भी जाते हो तो आपकी एक रोल मॉडल वाली छवि रहती है, पर हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। आज पीएचडी भी हम मेरे जैसे इंसान ने एमबीए किया, मुझे इतना नॉलेज है, आज मैं आगे जाके एमफिल करूंगी, पीएचडी करूंगी, तो ये तो नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस है लाइफ का। आप किस दिन परफेक्ट होके रुक जाओगे और वहां आपको सब आ जाएगा, आई डोंट थिंक ये मोमेंट किसी के लाइफ में आया होगा। पर ये जो रोल मॉडल और ये जो परफेक्शनिज्म का हम एक लेबल लगा देते हैं, जस्ट बिकॉज आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आपको सब आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बनता है। क्योंकि काफी बार कुछ चीजों में हम भी, जिस तरह से अभी कोविड में टीचर्स को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ी, जो सीनियर टीचर्स हैं जो कि जूम के बारे में जानते ही नहीं, वीडियो कैसे बनाते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था।
तो ये सारी चीज़ों ने स्ट्रेस और उनकी जो नॉर्मल दिनचर्या हर चीज़ को काफ़ी ऊपर नीचे किया. सो दीज आर ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, सराउंडिंग्स, और ये सराउंडिंग्स के एग्जाम्पल तो बहुत हो सकते हैं. बॉस हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, किसी किसी की वाइफ भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं. तो स्ट्रेस किसी भी रूप में आ सकता है. और एक बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आप को इट इज केपेबल इनफ टू अफेक्ट यू फिजिकली एंड इमोशनली. बहुत जल्दी नहीं दिखता कि आज जो मेरे घर में चोरी हो गई और मुझे स्ट्रेस हो गया और कल मुझे डिप्रेशन हो जाएगा. इतनी जल्दी नहीं होता है ये. दैट इज टेम्पररी, दैट इज मोमेंटरी. बड़ा हादसा हुआ आपके साथ, आपका स्ट्रेस होना, एंजाइटी, पैनिक करना नॉर्मल है, कोई गलत बात नहीं है उसमें, है ना. पर कोई छोटी, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की शादी टूट गई, वो चीजें ऐसी होती है कि समाज आपको फिर भी कहेगा कि उठो आगे बढ़ो, कुछ नहीं हुआ है. आपको अंदर दबाने कह दिया जाता है वो स्ट्रेस, वो परेशानी, क्योंकि आपको स्ट्रांग बन के अपने बच्चे को संभालना है, अपनी फैमिली को संभालना है. अभी कोरोना के टाइम पे भी कितने लोग हैं गुजर गए हैं. मेरी फैमिली में से भी ऐसा हुआ है, 2-3 लोग अब नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, पॉजिटिव थे वो. तो उनकी लाइफ में अचानक से ये दिन आए हैं. पर प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है कि हमें हील करने का वक्त नहीं दिया जाता है. हमारे अंदर ही अंदर हमें कहा जाता है उसे दाब लो और आगे बढ़ो. प्रॉब्लम ये होती है कि अंदर अंदर हम दाब के आगे तो बढ़ते हैं, पर धीरे 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 बहुत सी चीजें आगे जाकर डिप्रेशन, एंजाइटी का रूप ले लेती है. तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है, और कैसे, ये मैं आगे बताऊंगी. नाउ, स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव नहीं होता है ना. जब भी हम स्ट्रेस या डिप्रेशन की बात करते हैं तो लोगों को लगता है स्ट्रेस्ड है यार, बहुत स्ट्रेस्ड है बंदा, ये इंसान बहुत स्ट्रेस लग रहा है. काफी बार स्ट्रेस पॉजिटिव भी होता है. जैसे कि कल मेरा एग्जाम है, मैं बहुत टाइम से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ. मुझे कनाडा जाना है, मैंने IELTS के एग्जाम की तैयारी की है, कल वो एग्जाम मुझे देना है. अगर मैं वो स्ट्रेस ले रही हूँ तो दैट इज परफॉर्मेंस स्ट्रेस. आई वांट टू परफॉर्म गुड. स्ट्रेस है, एंजाइटी है कि आई वांट टू परफॉर्म, मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं. 7 CGPA नहीं आया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. वो स्ट्रेस आपको एक आगे बढ़ने का हौसला देता है. दैट इज नोन एज यू स्ट्रेस, जो आपको एनर्जाइज करता है, जो आपको खींचता है. यू हैव टू डू समथिंग. ये स्ट्रेस आपके, आई एम श्योर आप सब टीचर्स हैं तो बच्चों के साथ आप वो काम करते होंगे, मोटिवेट करते होंगे, उन्हें पुश करते होंगे. तो वो अब बात ये हो जाती है, आपके क्लास में अगर 40 स्टूडेंट हैं तो 40 में से जो टॉपर्स हैं ऑलरेडी, वो तो स्ट्रेस को प्रोडक्टिव वे में ले लेते हैं. पर जो कि नहीं पढ़ पाते हैं, जो थोड़े से पीछे रह जाते हैं, उनके लिए ये प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, उनके लिए ये तुरंत डिस्ट्रेस हो जाता है. सो स्ट्रेस फैक्टर एक जगह से आ रहा है. टीचर उन्हें अगर पढ़ा रहा है और उन्हें वो दिखा रहा है, मार्गदर्शक दे रहे हैं कि 10 दिन बाद आपके एग्जाम है, यू हैव टू परफॉर्म रियली वेल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछिए. तो जो होशियार क्लेवर बच्चे होते हैं, दे विल कम अप टू यू, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, या फिर वो पढ़ लेंगे. ये उनके लिए यू स्ट्रेस हो जाएगा. बट जो वीक बच्चे रह जाते हैं उनके लिए डिस्ट्रेस हो जाता है. उनको टेंशन अलग होने लगती है, मैंने पढ़ाई नहीं की है, मुझे ये समझ में नहीं आता है, मैं फेल हो गया तो मम्मी पापा क्या कहेंगे. तो सो दिस इज अनप्लेजेंट समटाइम्स, दैट डिप्लीट्स योर एनर्जी. और ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म भी होता है. ये तो मैं स्कूल कॉलेज की एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमें इन दोनों तरह के स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है. And again, it depends upon person's capacity also. हर एक की कैपेसिटी एक नहीं रहती है. अभी मुझ में क्षमता है कि मैं एक दिन में 4 काम कर लूंगी, और किसी और में क्षमता होगी वो एक दिन में 2 काम कर पाता है. पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कम है और मैं बहुत ज्यादा हूँ. कुछ उसकी क्षमता है. हर एक किस्म, अब ये मशीन्स होती है, कितनी चीजें होती है, हर एक की कैपेसिटी होती है. तो हम ह्यूमन मशीन ही है, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है. उस क्षमता से अगर ज्यादा हम खुद को जाकर खींचने लगते हैं तो ये स्ट्रेस बाउंस होता है. एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है जो कि आप लोग काफी बार आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा. ये जो ग्लास वाला एग्जांपल होता है, मैं हमेशा शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है. एक कोई भी ग्लास होता है, अगर उसकी क्षमता इतनी है और मैं उसमें पानी यहाँ तक भरूंगी ठीक है, यहाँ तक भरूंगी ठीक है, और मैं जबरदस्ती बॉटल से उसमें पानी डालती जाऊंगी, वो ओवरफ्लो के पानी गिरने लगेगा, और जो मैंने अंदर जो चीजें अच्छी रखी थी वो भी उसके साथ बह जाएगा, है ना. ये सब चीजें हमने हमारे साथ भी एक्सपीरियंस की होगी ना. कोई कोई दिन आते हैं जब आप टीचर्स हैं, या फिर मैं जो काम करती हूँ, या कोई भी ऑफिस में काम करता है, तो उन्हें लगता है ना कि आज बहुत ज्यादा वर्कलोड था यार, आज मैं बहुत परेशान हुआ. टुवर्ड्स द एंड ऑफ डे आप जब घर जाते हो, आपकी कुछ करने की एनर्जी ही नहीं रहती ना, कुछ अच्छा नहीं होती करने की. एंड दैट इज नॉट अ बीमारी, दैट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेस. वो उस दिन का नतीजा है. आज आपने 4 से ज्यादा काम कर लिए, जो कि होगा, ऑब्वियसली आप जॉब कर रहे हैं तो किसी ना किसी दिन वर्कलोड बढ़ेगा. दैट इज मोमेंटरी. बट यही चीज मैं समझाना चाह रही हूँ कि हम अपनी कैपेसिटी को
आज कर लिया कल कर लिया, पर हम अगर ये हैबिट बनाने लगते हैं कि यार मैं कर पा रही हूँ, आज भी मैंने 10 आर्टिकल्स लिखे तो शायद मैं कल भी लिख लूंगी, मैं 2-3 दिन लिख लूंगी, पर चौथे दिन मैं कोलैप्स कर जाती हूँ। ये मेरे साथ होता है। मैं किसी मंथ आई राइट, मैं यूजुअली रोज लिखती हूँ, तो जब मैं रिसर्च करके आर्टिकल्स लिखा करती हूँ तो मैं महीने में कभी कभी 20-25 न्यू आर्टिकल्स लिख के पब्लिश करती हूँ। किसी महीने में सिर्फ 10 लिखती हूँ, किसी महीने में 15 लिखती हूँ। और इस तरह से मैं खुद को जब जज करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इस मंथ प्रॉब्लम थी, इस मंथ मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी, इट्स ओके, आई टुक अ स्टेप बैक, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, जहाँ हम फुल टाइम जॉब कर रहे हैं वहाँ हम ये नहीं कर सकते कि आज मैं एक क्लास नहीं लूंगी, आज मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगी, ऑब्वियसली। बड़ा बाकी जगहों पर आप वो चीज कर सकते हो ना। 4 में से 3 चीजें जो आप कर सकते हो आप वो कीजिए, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, जॉब की डिमांड है, बच्चों की डिमांड है, घर की डिमांड है, और आपकी खुद की डिमांड आप सबसे पीछे कर लेते हो। कभी कभी खुद की चीज जो आपकी बॉडी जो आपसे कह रही है ना, आई एम श्योर सबको सिग्नल देती होगी, है ना? देती है कि नहीं? आप लोग की बॉडी ऐसे सिग्नल देते हैं कि नहीं यार आज नहीं हो रहा है मुझसे, आज मन नहीं है, बट फिर भी हम खुद को खींचते रहते हैं। तो किसी किसी दिन आपको खुद की भी सुननी चाहिए। So, जैसा कि मैंने कहा, what causes stress? There could be like thousands of external reasons, क्योंकि internally stress अपने आप बैठे बैठे नहीं होता। कुछ लोगों को ये ओवर थिंकिंग, जिससे एंजाइटी का एक फॉर्म कह सकते हैं आप, ओवर थिंकिंग प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी होती है। वो भी एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर है अगर वो बहुत लंबा समय तक चलता है। हम काफी बार लोगों से चिढ़ भी जाते हैं ना कि आप बहुत ज्यादा सोचते हो, यार ओवर थिंकिंग इट, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ लोगों का वो नेचर बन जाता है, ओवर द पीरियड वो पैटर्न बन जाता है। मैं ये कैसे करूँगा, मैं कैसे करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कल वहाँ जाना है। ये जो सवाल है ना, वो उनकी आदत में बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं होता जो उनको सूद कर सके कि कुछ नहीं, जो होगा सो होगा, जब टाइम अपने टाइम आने पर सब होगा, जैसे जो चीजें होनी है अपने आप होंगी, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। तो ये पैटर्न जब हम ब्रेक करना सीखते हैं, जब लोग ये पैटर्न ब्रेक करना सीखने लगते हैं, या उनके पास वाला कोई इंसान, उनका लाइफ पार्टनर, उनके पेरेंट्स, या फिर काफी बार पेरेंट्स भी होते हैं, जैसे मदर फादर भी होते हैं जो बहुत ओवर पॉजिटिव होते हैं, वो थिंक करते हैं बच्चों के लिए, सारी चीजों के लिए, तो उन्हें कंटिन्यूअस सूद, एक बाम बोलते हैं ना, आपको पेन होता है तो आप बाम लगाते हो, उस टाइप की जरूरत होती है। नहीं हुआ ये तो एक पैटर्न बन जाता है, और आगे जाके ये एक आपकी मानसिक बोल सकते हैं एक इलनेस का छोटा सा वो बन जाता है। तो मेजर फैक्टर्स, मेन हो या विमेन, आई डोंट फील स्ट्रेस या डिप्रेशन जैसी चीजों से कोई भी बचा है। यूजुअली कहा जाता है कि मेन आर स्ट्रोंगर, पर प्रॉब्लम ये होती है इस वजह से उन्हें खुलकर स्ट्रेस या उन्हें दुख भी जताने की आज़ादी नहीं दी जाती, क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्रिज्यूम्ड कि वो इतने स्ट्रांग होते हैं, वो कैसे वीक हो सकते हैं, वो तो घर चलाते हैं, वो कैसे वीक हो सकते हैं। इस वजह से उनके ऊपर एक अनकंडीशनल, एक अनवारंटेड सा कंधों पे हमेशा एक बोझ रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, सारे फाइनेंसेस मैनेज करने का, कि सारी चीज़ें टाइमली होनी चाहिए, सब चीज़ें हाथ रेडी होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का। फिर स्ट्रेस के कारण वुमेन और मेन में ये भी होता है, कोई प्रोलॉन्ग इलनेस हो जिससे आप बहुत टाइम से परेशान हो, कोई हैंडीकैप्ड होते हैं, कोई व्हील चेयर पे होते हैं, वो एक रेस्टलेसनेस वाली जो फीलिंग लोगों में होती है। काफी बार आपने भी आसपास ऐसे लोगों को देखा होगा ना, जो हैंडीकैप्ड हैं, व्हील चेयर पे हैं, कोई बड़ी बीमारी से हैं, उनमें कहीं ना कहीं एक निराशा, सैडनेस घर करने लगती है, क्योंकि जिस तरह से वो जीवन जीते थे अब वो नहीं। रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी का डिवोर्स हो गया, कोई सेपरेटेड रह रहा है, तो भले ही वो इंसान देखने में नॉर्मल लगते हैं, पर अंदर ही अंदर उनकी एक स्ट्रगल चल रही होती है, जो कि बहुत ही बड़ी किस्सा। मैं उस स्ट्रगल को बहुत बड़ा मानती हूँ, क्योंकि वो इंसान ऐसा होता है कि ऊपर से मुस्कुराते रहते हैं, पर उनके अंदर थाउजेंड्स, बोलते हैं ना, वेव्स ऑफ ओशन, अंदर इतने सवाल जवाब और इतनी सारी इमोशंस का वो चल रहा होता है कि वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं। देन देयर इज लॉस ऑफ लव्ड वंस, कोई अचानक से किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, किसी के पेरेंट्स, कभी किसी के कोई हस्बैंड वाइफ, तो उसका सदमा जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं, काफी बार वो सदमा बहुत टाइम बाद आता है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस। देन एक और रीजन है जो मैं मानती हूँ, वो हमारी खुद की इग्नोरेंस और डिनायल है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारी जो क्षमता है, अगर उससे ज़्यादा हम खुद को खींचते जा रहे हैं रोज़, नहीं मुझे तो रोज़ आर्टिकल लिखना ही है क्योंकि मुझे अच्छा रिजल्ट आ रहा है, मुझे अच्छे विजिटर्स आ रहे हैं, मेरे रीडर्स बढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है ऑब्वियसली, मुझे रीडर्स बढ़ते हैं, लोग आके कमेंट्स करते हैं, उन्हें हेल्प मिलती है, तो मुझे और मन करता है, दैट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर मी, है ना। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो आज मैं और आर्टिकल्स लिखती हूँ, बट उससे 5-6 दिन बाद ये होने लगता है कि मैं
बच्ची पे कम ध्यान दे पाऊंगी, मेरे घर के कुछ काम पेंडिंग रह जाएंगे, मेरी हेल्थ, मैं रात को लेट तक काम कर रही हूँ क्योंकि लैपटॉप के सामने बैठकर पूरे टाइम आई हैव टू रीड, आई हैव टू राइट, एंड आई राइट एटलीस्ट 3000-2000 वर्ड्स का एक आर्टिकल जिस पे रिसर्च करना पड़ता है, ग्राफिक्स बनाने पड़ते हैं। इस तरह से अगर मैं दिन रात लग जाऊं तो मेरी कितनी चीजें पीछे रह जाएगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है चल रहा है ना, चलने दो, ये चलता है वाला एटीट्यूड लेके हम चलते रहते हैं। बट सबसे बड़ी छोटी सी जो बात है, जो मेरे पापा हमेशा कहते हैं, जान है तो जहान है वाली बात, वो मैं याद रखती हूँ। क्योंकि आज भले ही मैं नहीं लिख पा रही हूँ, आज मैंने एक भी आर्टिकल नहीं लिखा, 2 दिन नहीं लिखा, कुछ नहीं होगा, पर अगर परसों मेरा हेल्थ अच्छी है, मेरा मूड अच्छा है, तो मैं शायद 2 आर्टिकल एक दिन में लिख लूंगी। तो कभी कभी यू नीड टू टेक टाइम। सेकेंडली डिनायल, काफी बार हमारी बॉडी सिग्नल वार्निंग देती है। हमारी जो फ्रोजन शोल्डर्स आप लोगों ने भी शायद महसूस किए होंगे, ये बहुत कॉमन चीजें हैं स्ट्रेस की। जैसे फ्रोजन शोल्डर्स कहते हैं, जकड़न सी लगती है जॉ लाइन में, एक अजीब सा जकड़न लगती है, आपके मसल्स में टेंशन दिखेगी आपको, पर आपको ऐसा लगेगा थकान की वजह से हो रहा है, बट समटाइम्स इट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस। बहुत सारा मेंटल प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर है, फाइनेंशियल कंसर्न्स, बहुत सारी चीजें जो आप अपने बॉडी के अंदर रखते हो। हमें लगता है कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट वो एक्यूमुलेशन धीरे धीरे आपको एकदम जकड़ के रखता है। अभी भी आई एम श्योर बहुत से लोग जो बैठे होंगे वो कम ही होंगे जो एकदम पूरी तरह से रिलैक्स होके बैठे होंगे, उनमें एक वो जकड़ाव सा रहता ही है हमेशा। ये कॉन्शियसली आप जब आप कॉन्शियसली सोचते हो इस बारे में तो आपको रियलाइज होता है, एंड देन यू ट्राई टू लूजन अप, अपने शोल्डर्स ढीले छोड़ते हो, एंड यू नीड टू रिलैक्स। सो आप प्लीज रिलैक्स होकर बैठिए और इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी बॉडी आपको सिग्नल दे you are feeling tense in your jaw line या फिर यहाँ पे frozen shoulders में आपको ऐसा टेंशन खिंचाव सा लगे, तो you need to please relax, drink some water, 2-3 बार जाके deep breaths लीजिए, 3 breaths at least, deep breaths लीजिए। These are all छोटा छोटा बोलते हैं ना coping mechanism, जो आप वर्क प्लेस पे भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। इवन पढ़ाते टाइम अगर आप 1 घंटे का 40 मिनट्स का लेक्चर ले रहे हो और उस बीच आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, हम भले ही जॉब कर रहे हैं, हम कहीं के प्रिंसिपल हैं, हम कहीं पे यू नो वाइस प्रेसिडेंट है, सीईओ है, कुछ भी है, पर हम सबसे पहले इंसान हैं। जैसे कभी भी अंदर कोई भी चिंता सता सकती है, कोई भी फैमिली प्रेशर, कुछ भी पर्सनल जो बोलते हैं ना पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो भले ही आप अपने जॉब पे यू गेट अप, यू शो अप, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, आप उठ के आते हो, काम करते हो, अपनी सारी ड्यूटीज निभाते हो, बट आपकी एक ड्यूटी आपके तरफ भी है। वो डिनाइल में मत रहिए कभी भी कि मेरा सब चल रहा है, आई एम फाइन, आई कैन वेयर दैट हैप्पी मास्क, मैं खुश हूँ और मैं जाके आज अपना बेस्ट करूंगा। वो आपको बेस्ट देने देगा। ऑब्वियसली आप आज कर लोगे, कल कर लोगे, पर परसों शायद आपका सर दर्द और बढ़ेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको मन करेगा सोए रहूं, आज मैं ऑफिस ना जाऊं। तो वो बहुत जरूरी होता है कि इन बिटवीन यू टेक टाइम, यू टैप आउट, ड्रिंक सम वाटर, 2 मिनट बैठ के आप सांस थोड़ा ब्रीदिंग वो कर लीजिए, 2 मिनट आप बाहर जाकर आ जाइए, कुछ नहीं होता, कुछ इशू नहीं होगा, आप आगे जाके बड़ी इशू होने को रोक सकते हो इस चीज से। सो हर रोल के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। अगर मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे अलग समस्याएं हैं, मैं एक वर्किंग वुमन हूँ तो मेरी अलग समस्याएं हैं, और आप टीचर्स हैं तो आपकी अलग समस्याएं हैं। मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, बट इन दी एंड आप लोग भी चाहें तो इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एक मैंने पहले ही कहा था शुरुआत में, टीचर्स पे एक बड़ा प्रेशर रहता है कि दे आर ऑलवेज लुक्ड एज रोल मॉडल्स। उन्हें कहा जाता है ना कि रोल मॉडल्स हैं वो। जस्ट वन, उन्हें कहा जाता है कि वो रोल मॉडल्स हैं, तो उन्हें हमेशा उसी तरह से देखा जाता है। तो उनपे एक और प्रेशर ये रहता है हमेशा, ये स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस का प्रेशर। स्कूल से लेकर कॉलेज तक में हमेशा देखा है, मैंने भी स्कूल में पढ़ाया है तो मुझे पता है कि बच्चा वीक है, बोल्ड है, मीडियोकर है, एवरेज है, जो भी है, उसका मैक्सिमम पेरेंट्स श्रेय टीचर्स पे और स्कूल पे डाल देते हैं। कुछ पेरेंट्स सेंसिबल भी देखे हैं, दे फील दैट 50-40, 50-50% होता है, ये आपका भी रोल है, मेरा भी रोल है। बट मेजॉरिटी पेरेंट्स मैंने ऐसे ही देखे हैं कि बच्चा परफॉर्म नहीं करता है तो ज्यादातर जिम्मेदारी या तो टीचर की होती है या स्कूल की होती है। तो वो एक प्रेशर लेकर आपको चलना होता है, और पेरेंट्स को आप obviously आप impolite नहीं हो सकते because that's your service, your I mean education sector is a very big service thing। तो ये एक प्रेशर रहता है आपके ऊपर। देन आपके लेसन प्लानिंग है, फिर पीयर प्रेशर। यहाँ पीयर प्रेशर जैसे स्कूल्स में तो फिर भी हम 50 हैं, 100 टीचर्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स में ज्यादा भी होते हैं। बहुत कम सर्कल में, हम छोटा सा सर्कल बना के हम रहते हैं। जैसे स्कूल्स में तो मैंने देखा है प्राइमरी, मिडिल सेक्शन, सीनियर सेक्शन को डिवाइड कर दिया जाता है, तो यू आर यूजुअली कनेक्टेड टू योर सेक्शन पीपल। वहाँ पे भी पीयर प्रेशर काफी बार
समस्या से आता है, क्योंकि कहते हैं ना जितने लोग होते हैं उतनी बातें होती है, और हर जगह पे माहौल का बहुत बड़ा हाथ होता है, बोलते हैं ना एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा हाथ होता है एक दूसरे के लिए, एक स्ट्रेसर का काम करना या ना करना। और आपको ये भी कहूंगी कि आप कहीं भी चले जाओ, स्कूल में जॉब कर रहे हो चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको कुछ ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे। तो जब यहाँ पे मैं एक चीज मैं करती हूँ जो मैं आपको बताऊंगी, सिंस आई एम अ सर्टिफाइड माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर, माइंडफुलनेस इज नथिंग। माइंडफुलनेस एक बहुत ही सिंपल सा टूल है जहाँ पे आप खुद को एक तीसरे इंसान की तरह देखते हो, और सामने वाला जो इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, ये बहुत मुश्किल से आता है, आई एम श्योर, तुरंत नहीं होता है कि आज मुझे किसी ने बुरा बोला और मैं उसको दूर से देख के उसे मूर्ख समझ के उस पर हंसूं और छोड़ दूं वो बात। थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उस वक्त हमें गुस्सा आता है, हमें उसे जवाब देना होता है, ये कैसे कह दिया उसने, उसे पता भी है कैसे, कितना मुश्किल होता है ये सारी चीजें करना। बट ये प्रैक्टिस के साथ आता है, एंड आई एम टेलिंग यू, आप बड़ी से बड़ी चीजों में भी बिना जवाब दिए निकल जाओगे जब आप ये देखना शुरू कर दोगे कि ये तो ऐसा ही है, इससे तो आप क्या उम्मीद करोगे, चाहे वो कितने भी बड़े लेवल पे हैं, चाहे वो कितने भी छोटे लेवल पे है। जब आप इंसान को समझ लेते हो ना कि एक बार ये एक्सपीरियंस आ गया है आपको उसके साथ, और आप अपनी लाइफ को ऐसे देखो कि वो स्टोरी है, वहां पे वो दो इंसान और आप देख रहे हो, आप नहीं हो, तब आपको लगता है कुछ नहीं है, आप उस चीज का एसेंस ही हटा देते हो। तो आप जब उस चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हो तो आप पे वो असर नहीं करता है। इस पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको शेयर करूंगी तो मे बी आप समझ पाएंगे। सिंस आई राइट, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, वेबसाइट्स पे लिखती हूँ, तो मेरी 2 वेबसाइट्स हैं, उसमें से लास्ट ईयर मैंने एक वेबसाइट किसी सर्विस प्रोवाइडर से होस्ट करवाई थी, होस्ट मींस उनसे डिजाइन करवाई थी, उन्होंने अच्छे से बना के दी थी। इस साल रिन्यूअल की बारी आई तो उन्होंने रेट बहुत बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिए। अब वो होता है ना, बिजनेस चल पड़ता है तो लोग आगे जाकर एकदम डबल ट्रिपल रेट्स कर देते हैं, बट मैं बहुत मिनिमल चार्जेस लेती हूँ मेरे सेशंस या मेरे काम के, तो मैंने उतनी उन्नति नहीं की एक साल में कि मैं डबल दे पाऊँ। तो मैंने उनसे बस क्वेश्चन कर लिया कि रेट्स तो बढ़ गए हैं आपके, और मार्केट में तो इससे कम रेट में भी हो जाता है। तो यूजुअली जो हम सर्विस प्रोवाइडर्स या कहीं दुकान में भी कुछ लेने जाते हैं तो इस तरह से हम बातें करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हुआ कि उन्हें थोड़ा ऑफेंडेड लग गया, क्योंकि आज वो बड़े हो गए हैं, तो उन्हें दिल को ठेस पहुंच गई। उन्होंने कहा कि हम आपका काम अब नहीं करेंगे, जहाँ पे आपने देखा है आप वहीं से काम करा लीजिए। तो मुझे लगा ये तो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, पर वो रेट ज्यादा था जो मैं नहीं दे पाती। उन्होंने मेरे सारी चीजें, मेरे ईमेल आईडी पासवर्ड दे दिए कि यहाँ से आप जाके उसको आप रिन्यू कर लीजिएगा, और आगे से ऐसे लोगों के साथ काम नहीं करेंगे जो कि हमारी सर्विस को रेट पे क्वेश्चन उठाए। तो मैंने उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आया कि इतना सब पूछने पे एज अ कंज्यूमर मेरा राइट है ना। आप भी पूछताछ करते ही होंगे कोई चीज लेने के पहले, जहाँ आपको अपने पॉकेट से पैसे डालने हैं वहां तो ऑब्वियसली आप पूछोगे ही ना। तो मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मेरे थ्रू 3-4 लोग गए थे उनके पास, उन्हें शायद ये टेंशन हुई कि अब ये मैंने बोल तो दिया, अब मैंने गुस्से में आकर आपको कुछ बोल दिया। उसके बाद जैसे मुझे रियलाइज हो रहा, अरे बाप रे ये मैंने क्या कर दिया, अब वो जाकर किसी और को बोलेगी, मेरा नाम, मेरा बिजनेस खराब होगा। उसके पहले उन्होंने उनके पास जाकर ये चीजें बोल दी कि मतलब पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया क्या बोला, बट कुछ ऐसा हुआ कि उन 3-4 लोगों ने मुझे बताया कि वो आपके लिए ऐसा बोल रहे हैं और वो हमको कह रहे हैं कि अब वो उनका काम नहीं करते, मतलब वो उन्होंने हमारे साथ काम छोड़ दिया। मुझे बहुत दुख हुआ, गुस्सा आया। उन्होंने मेरी वेबसाइट की थीम्स डिसेबल कर दी, वो खुरापात शुरू कर दिया, अनप्रोफेशनलिज्म कह सकते हैं आप इसको साफ शब्द में। पर आज तक 2 महीने हो जाएंगे, मैंने उस लेडी को पलट कर जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि ये नहीं है कि जवाब दे नहीं सकते, बात ये है कि जो लोग इतने अनप्रोफेशनल, इतने अनएथिकल हैं, उनसे आप उलझ के क्या आप लड़ाई पे उतर आओगे। फिर आप अपनी पीस ऑफ माइंड खोलोगे। और आगे मुझे इतना काम है करने के लिए कि मैं अगर एक व्यक्ति के साथ जुड़ के इस तरह से बैठ गई, एक एक को जवाब देने लग गई, तो मेरे तो वही मेंटल पीस खत्म हो जाएगी। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? आपको कुछ कहना है सर? ओके, तो ये मैंने छोटा सा एग्जांपल शेयर किया। मुझे बहुत टाइम लगा इस चीज को सोचने में, और मुझे लगा कि क्या करूं, जाने दूं कि उससे बोलूं किस तरह से आप कैसे कर सकते हो, इस ये बहुत अनप्रोफेशनल है। पर मैंने उन्हें छोड़ दिया, और अब मुझे वो इफेक्ट नहीं कर रहा है। उस टाइम इफेक्ट हुआ, बट अब इफेक्ट नहीं करता। 10 टीचर्स के लिए एक और चीज आती है, एजुकेशनल पॉलिसीज में चेंजेस होते हैं, तो सिलेबस अपग्रेड होता रहता है, पर टीचर ने तो अपनी पढ़ाई कर ली होती है ना। टीचर्स इतने बिजी हो जाते हैं, उन्हें स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, लेसन प्लानिंग, रोज के इतने काम होते हैं कि दे डोंट गेट टाइम टू अपग्रेड देमसेल्फ, बोलते हैं ना वो लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ,
उन्हें घर जाकर घर की चीजें भी देखनी है, स्पेशली वुमेन, यहाँ पे वुमेन को, क्योंकि आप कितना भी बड़े टीचर हो, यूर प्रिंसिपल, बट घर जाके यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स, योर फैमिली ऑल्सो। तो उन्हें वो टाइम एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि जहाँ वो बैठ के खुद को भी अपग्रेड कर सके, नई नई चीजें सीख सके। तो काफी बार वो भी एक स्ट्रेस की और चैलेंजिंग इशू दिखता है। देन वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि शायद हम सबकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सवाल है। घर और ऑफिस, घर में घर ऑफिस का काम लेके जाओ, क्योंकि टीचर्स को कॉपीज नोट्स चेक करने होते हैं, क्वेश्चंस बनाने होते हैं, सारी चीजों के लिए। तो घर वाले परेशान, स्कूल में आप थोड़ा आज घर में काम लोड ज्यादा होने की वजह से अगर नेक्स्ट डे स्कूल में आप थोड़ा सा अनप्रोडक्टिव हो जाओ, आज आपने कोई काम अच्छे से नहीं किया, आज का दिन अच्छा नहीं गया, तो वहाँ टीचर और बाकी लोग परेशान। तो ये बैलेंस जो है ना, ये संतुलन का ही सारा खेल है, जो कि आपके स्ट्रेस को बढ़ाता है। और जिस दिन ये संतुलन बैठ जाता है, उस दिन आप बहुत खुश होते हो। होता है ना ये हम सबके साथ। आज मैंने ये 4 चीजें करनी थी, मुझे आपके साथ एक सेशन लेना है, शाम को एक और सेशन है, और उस बीच में मेरी डॉटर है। ये सारी चीजें अगर मैं आज अच्छे से कर लूं, तो मैं शाम को शांति से रहूंगी कि आज मेरा दिन अच्छा गया। पर यही काफी बार होता है, नेटवर्क कनेक्ट नहीं होता है, जूम कनेक्ट नहीं हो रहा है, लाइट चली जाए या कुछ भी इशू हो सकता है और मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं दिन को दोष दे दूंगी कि आज मेरा दिन ही खराब गया। बट काफी बार यहाँ पे जो चीजें हम कर सके वो हमें करना चाहिए। द नॉन सपोर्टिव एटमॉस्फेयर, जैसे मैंने पहले कहा शुरुआत में कि एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा हाथ होता है। हम चाहे घर में हैं चाहे ऑफिस में हैं, अगर मेरे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होते तो मैं इतना काम नहीं कर पाती, मेरी फैमिली सपोर्टिव नहीं होती। हाँ, इन लॉज ऑब्वियसली नहीं समझ पाते कि मैं ये क्या करती हूँ, उनके लिए ऐसा होता है कि यू शुड गो, आप इतने पढ़े लिखे हो, बाहर जाकर नौकरी क्यों नहीं करती, यू विल गेट अ फिक्स इनकम, अच्छी खासी जॉब छोड़ के आप ये समाज सेवा पे उतर आए हो। बट कोई बात नहीं, आज वो नहीं समझ पाते मैं क्या कर रही हूँ, पर उसका सेटिस्फैक्शन मेरे लिए इतना अच्छा है कि मुझे वो जो रिजल्ट मिलता है लोगों की 2 अच्छी बातें सुन के, प्यारी फीडबैक मिलके, तो वो मेरा दिन बन जाता है। तो वो अच्छी बात मैं ले लेती हूँ और वो जो बुरी बातें मैं वहीं छोड़ना सीख गई। बहुत वक्त के बाद आया, शुरू में मुझे भी होता था कि ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। देन ऑफिस में मेरे 10 कलीग्स हैं मेरे डिपार्टमेंट में, जैसे कि मैं कस्टमर सपोर्ट सर्विस में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में जब काम करती थी, तो मुझे मराठी नहीं आती थी। ऑब्वियसली मैं नासिक में रह चुकी हूँ काफी टाइम, तो मुझे काफी बार बुरा लगता था, क्योंकि मैं नई नई शिफ्ट हुई थी शादी के बाद, मुझे मराठी नहीं आती थी। अब तो खैर आती है, अब मैं बोल सकती हूँ, समझ भी सकती हूँ। बट दैट वाज द टाइम आई यूज्ड टू फील वेरी लेफ्ट आउट कि हिंदी में क्यों नहीं बोल रहे हैं, मुझे 9 लोग मराठी में बात कर रहे हैं, मुझे भी तो इन्वॉल्व करो ना। तो वहाँ पे थोड़ा सा ना आपको फिर अलग सा लगने लगता है। फिर जैसे धीरे धीरे आप अपना घर बनाने लगते हो, लोगों के साथ वहाँ रोज मिल रहे हो, लोग आपको जानने लगते हैं, तो दे फील, वो अपने आप फिर हिंदी बोलने लग गए, इंग्लिश बोलने लग गए। उन्हें समझ में आया कि हाँ, सपोर्टिव एटमॉस्फेयर ऐसे ही तो बनता है ना, जब आप किसी को वेलकम करते हो। और यही वाली बात है कि कोई बाहर से जब इंसान आपके घर में आता है, जैसे कि डॉटर इन लॉ आई है या सन इन लॉ आया है, तो काफी बार हमें भी आगे आके एक एटमॉस्फेयर उनको देना पड़ता है। तो छोटे से एग्जांपल्स दिए मैंने, ये बहुत बड़े बड़े लेवल के होते हैं। एक छोटी सी स्माइल इतना कुछ कर सकती है आपके लिए। एक एटमॉस्फेयर इतना बड़ा, मैं बोल रही हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपका इंस्टीट्यूट है, स्कूल है या कहीं पे भी, अगर आपको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर पे कंसंट्रेट करो, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करो कि नहीं यार, हम 100 की, आप शायद जितने भी टीचर्स हैं, अगर आप 45 या 100 टीचर्स हैं, तो ये हमारी टीम है, वी आर वर्किंग फॉर दिस इंस्टीट्यूट। हमारे घर में प्रॉब्लम्स है, ठीक है यार, आज मेरा मूड ठीक नहीं है, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो पानी पी, जाके लेक्चर ले। एक ये जो एटमॉस्फेयरिंग होता है ना, और काफी बार लोग क्या सोचते हैं ना कि हम अगर ये शेयर कर देंगे कि आज मैं परेशान हूँ, तो ये मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। सबको जजमेंट का डर रहता है ना, मैं तो इतनी बड़ी टीचर हूँ और मैंने कह दिया कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ और मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बताएं एग्जैक्टली, बट आप ये बोल सकते हैं कि आजकल थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही है यार, इस वजह से मैं थोड़ा फोकस नहीं कर पा रही हूँ। या फिर आप उसको और अच्छे से कह सकते हो कि दिस इज जस्ट टेम्पररी, आई विल कम आउट ऑफ इट, बट यार थोड़ा सा टाइम चाहिए। उससे सामने वाले, इवन काफी बार लोगों के साथ बहुत बड़ी बड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स ऐसी ही चलती हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी पूरी हैम्पर हो जाती है। आपको पता है, स्ट्रेस से लोगों की मेमोरी तक जाती है, दे लूज कंसंट्रेशन, वो नाम भूलने लगते हैं, वो चीजें भूलने लगते हैं। और उस टाइम पे उनके लिए जॉब भी करना जरूरी है, क्योंकि उनका घर कैसे चलेगा, है ना। तो ऐसे चीज में अगर आपको सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, तो ये आपका काम है कि आपको जाकर आपके हेड से, आपके सुपीरियर से ये बोलना पड़ेगा कि यू आर गोइंग थ्रू समथिंग। एंड वहां पे उन सुपीरियर का भी काम ये नहीं है कि उन्हें काम से निकाल दे या फिर उन्हें बुरा भला सुनाए। ये एक जो सेंसिटिविटी एनवायरनमेंट बोल रहे हैं ना मेंटल हेल्थ के लिए, एक सेंसिटाइजेशन सोसाइटी में होना बेहद जरूरी है, ताकि वो एटमॉस्फेयर मिल पाए कि हाँ कोई बात नहीं, 2 दिन का ब्रेक लो, 2 दिन के बाद कम बैक विथ अ गुड माइंड। या फिर चलो
दिस इज द इशू, इट इज ओके, ये काम उसमें तो टेम्पररी डिवाइड कर दो, बट आई वांट कि एक हफ्ते बाद तुम इस चीज को वापस कर दो। एंड सेम फिर जिनके लिए हेल्प की जा रही है उनको भी इस चीज के लिए ग्रेटफुल होकर उसी पूरी ईमानदारी के साथ उस टाइम को अपने लिए यूज करना है कि मैं कैसे प्रॉब्लम से निकलूं और फिर कैसे आई बाउंस बैक एंड गिव इट बैक टू द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने मेरी हेल्प की। तो इस तरह से वी क्रिएट अ एटमॉस्फेयर। सीनियर्स के साथ जल्दी से हम नहीं जाते, बट एटलीस्ट जो हमारे सबॉर्डिनेट्स, हमारे जो पियर्स है, हमारे जो कोलीग्स है, at least we can build a team with them, because I'm sure कि कोई ना कोई हमारा खास इंसान जरूर होता है कि ये मेरा बहुत अच्छा इनसे जमती है या जो भी। Then अभी किसी को कोई सवाल या कोई कुछ है, कुछ कहना है किसी को? No ma'am, fine. Okay ma'am. तो बेसिकली मैं आपको 4-5 A's मेरे शेयर करूंगी जो कि बहुत बेसिक चीजें हैं। आप ये करते भी होंगे, बट काफी बार छोटी छोटी चीजों का जब हम रिमाइंडर देते हैं किसी को तो वो उनके कॉन्शियस माइंड में बैठता है कि हाँ, काफी बार छोटी छोटी चीजें हमें बच्चों को भी रिमाइंड करनी पड़ती है ना, और उसके बाद उनका भला ही होता है। तो वैसे ही ये चीजें छोटी छोटी है जो हम एक दूसरे को हमेशा रिमाइंड कर सकते हैं, तो उससे एटलीस्ट हमारा दिन अच्छा जाएगा। लोग यूजुअली कहते हैं योगा करो, मेडिटेशन करो यार, एक्सरसाइज करो, अच्छे से सो। ये चीजें तो हमें करनी है, मुझे भी करनी है, आपको भी करनी है, बट उसके अलावा फर्स्ट थिंग होती है एक्नॉलेजमेंट। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि डिनाइल में रहते हैं हम नहीं मानते कि हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रेस, मैं कैसे स्ट्रेस हो सकता हूँ, मेरे को क्या डिप्रेशन होगा, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये सब चीजें मुझे नहीं होती। अच्छी बातें नहीं होती, बट कुछ कुछ लोगों को मन में होती है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। जब आप एक्नॉलेज कर लेते हो उस चीज को, यू क्रिएट अ रूम फॉर एक्सेप्टेंस। जब तक मैं ये नहीं मानूंगी कि मुझे कुछ ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, मैं पहले इतनी लो फील नहीं करती थी, मुझसे पहले 4 काम हो जाते थे आराम से, अब मैं एक काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझे लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऑफिस भी मजबूरी में जाना पड़ता है। तो यहाँ जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करोगे कि कुछ प्रॉब्लम है, जब तक आप अपने आप को ये मानोगे नहीं कि शायद कुछ इशू है जिसको मुझे बैठ के सोचने की जरूरत है, तब तक वो एक्सेप्टेंस आप खुद को नहीं दे पाओगे कि इट इज ओके टू फील लाइक दिस। इशू है, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है हमारे सोसाइटी में, मेंटल इलनेस यानी कि मानसिक तनाव, मानसिक स्वास्थ्य लेकर लोगों को सीधा कह दिया जाता है पागल है। मराठी में क्या कहते हैं, डोका फैलिया, तुझे कुछ तो बोलते हैं ना, डोका खराब हो गया, इस तरह से बातें हम सीधा यूं कह देते हैं, यार ये तो ऐसे ही है। इवन लोगों को तुरंत कह देते हैं कि इसको पागल खाने में डाल दो, ये क्या डिप्रेशन जैसा रहता है हमेशा। पर ऐसा नहीं होता है। लोगों की प्रॉब्लम सिर्फ हंसी मजाक उड़ाने की नहीं होती है, जो उस चीजों से गुजर रहा होता है उसका खाना पीना सोना उठना हर कुछ इफेक्ट करता है, इवन फैमिली लाइफ इफेक्ट करती है। इवन ऐसा होता है अगर आप मैरिड हो और अगर आप सीवियर डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक, 300 तरह की मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, 300 टाइप्स, जिसमें से हम सिर्फ 4 जानते होंगे, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक या फिर ओसीडी। इनमें से सीवियर जो होते हैं उनके साथ आप रह भी नहीं पाते हो, ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं, और उनके अंदर जो चलता है वो अलग। इसके लिए हमें अवेयरनेस बढ़ानी बेहद जरूरी है। अवेयरनेस इसका मतलब ये नहीं कि आप 300 डिसऑर्डर्स के बारे में जाके पढ़ो और आपको सब पता होना चाहिए, बट हाँ इतना जरूर हम कर सकते हैं कि अगर आप जैसे खुद के साथ आप अपने आप, वी ऑल आर टीचर्स, हम एडल्ट्स हैं, हम खुद को अच्छे से जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले मैं ऐसी थी, आज मैं ऐसे हूँ, तो कुछ चेंज आया है क्या। 1-2 हफ्ते तक इट इज ओके, बट कोई भी चीज अगर 3 हफ्ते से ज्यादा आपको परेशान कर रही है या फिर 3-4 हफ्ते तक भी यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, किसी किसी की एपेटाइट कम हो जाती, कोई 2 रोटी से 1 रोटी खाने लगता है, कोई 6 घंटे से सिर्फ 2 घंटे सोता है, या फिर कोई 8-10 घंटे सोता है, या कोई ओवर ईटिंग करता है, ये सब चेंज है आपकी लाइफस्टाइल में। और ये ऐसे ही नहीं होता। हाँ ये बात है कि कभी कभी कोई चीज अच्छी बनी है तो हमने ज्यादा खा ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रेस है। कभी आप थक गए हो, आप ज्यादा सो लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई इशू है। बट अगर ये 3-4 हफ्ते तक चले आ रहा है, ये पैटर्न बन गया है कि मैं नहीं उठ पा रही हूँ या मैं नहीं सो पा रही हूँ, तो देखने की जरूरत होती है। यू नीड टू टॉक टू समवन, घर में किसी से शेयर कीजिए। और घर में भी अवेयरनेस की कमी नहीं होती है, इसलिए लोग आपको आलसी कह देंगे, लोग ये कह देंगे कि ये तो आलस है, काम नहीं करना चाहता है, या फिर कोई और प्रॉब्लम होगी। तो उस तरह से अगर कभी आपको अच्छा माहौल नहीं मिलता है, जब आपको ये माहौल नहीं मिल रहा है कि आप शेयर कर रहे हो और कोई आपको सुन नहीं रहा है, रीच आउट टू समवन हु कैन हेल्प। इसलिए जैसे मैं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे मेंटल हेल्थ कंट्रीब्यूटर्स, प्रमोटर्स हैं, वो फिर आपको ये बता पाते हैं कि आपको काउंसलिंग की जरूरत है कि आप खुद कर लोगे ये चीजें। फिर आप काउंसलर्स के पास जा सकते हो, लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, मतलब ये बहुत सीवियर होने के बाद की बात कर रही हूँ मैं, बट इसके लिए आपको अवेयरनेस होना बेहद जरूरी होता है ना। Then contribute in creating a healthy atmosphere.
लास्ट स्टेप पे मैंने ये कहा था कि एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जैसे कि आपको एटमॉस्फेयर चाहिए तो आप भी किसी के लिए एटमॉस्फेयर बनाइए, अपने ऑफिस में बनाइए, अपने घर पे बनाइए। हाँ, सारी चीजें नजरअंदाज करके हम नहीं रह सकते हैं। जहाँ हमें बोलना है वहाँ बोलना पड़ेगा, जहाँ स्टेप लेने हैं लेने पड़ेंगे। बट काफी बार अगर आप किसी को देख रहे हो, कोई इंसान जेन्युइनली परेशान है, रीच आउट टू देम, आस्क देम कि आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, कुछ इश्यू है क्या, इट्स ओके, यू कैन शेयर। शेयरिंग के 2 रूल्स होते हैं। सबसे पहले आपको नॉन जजमेंटल होना पड़ेगा और एकदम एक्टिव लिसनर होना पड़ेगा। लोग अक्सर जब कोई किसी का कुछ बता के सुन तो लेते हैं बट उसको जज करने लगते हैं। अभी आपने मुझे कोई प्रॉब्लम बताई, मैं सुन लूंगी और उसके बाद में बोलेंगे हाँ ऐसा है, तो वो फिर आपका सुनना नहीं हुआ। दूसरा, यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर। आपको ये सुनना है तो अपना नहीं बोलना है, आपको सिर्फ उसको सुनना है। काफी बार ये होता है कि इंसान परेशान है, उसे कोई सुनने वाला ही नहीं मिलता है, उसे कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता है कि मैं किसके पास जाके ये प्रॉब्लम बोलूं। उसको हल नहीं चाहिए। अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आप उसको वो हल नहीं दे पाओगे, बट आप उसको सुन के उसका मन हल्का कर सकते हो। तो ये होता है एक हेल्दी एटमॉस्फेयर जो आप भी उम्मीद कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों से और आप भी बना सकते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए। देन लास्टली, अलाउ योरसेल्फ टू मेक सम मिस्टेक्स। आप टीचर्स हैं, माना आप रोल मॉडल्स हैं। मैं भी अपनी टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आज भी उनको टीचर्स डे पे हमेशा विश करती हूँ, बट मैं ये भी मानती हूँ कि वो ह्यूमंस हैं, है ना। मेरी डॉटर स्कूल में जाती है, जब भी कुछ इशू होता है मैं कभी उन पे पूरी ब्लेम नहीं डालती हूँ जब तक मुझे बात का पता ना चले कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्योंकि मिस्टेक्स सबसे होती है ना, टू आर इज ह्यूमन, राइट। तो ये जो परफेक्शन वाला हम बैगेज अपने ऊपर लेके हमेशा घूमते हैं कि नहीं नहीं हमें परफेक्ट होना है, मालूम है ये चलेगा नहीं कि मैं किसी को आप जाकर पेरेंट्स को बोलो कि आई कांट बी परफेक्ट, तो वो ऑब्वियसली नहीं सुनेंगे। बट आप खुद को गलतियां करने की आप खुद को इजाजत तो दे सकते हो। आप ये कर सकते हो कि हाँ ये मुझसे प्रॉब्लम हुई है, नाउ आई हैव टू मेक इट। बात अगेन वही आ जाती है, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, एटमॉस्फेयर, अलाउ। इफ यू अलाउ योरसेल्फ टू मेक मिस्टेक्स, देन यू एक्नॉलेज देयर इज अ प्रॉब्लम, देन यू एक्सेप्ट इट एंड देन यू वर्क ऑन इट। वही चाहिए होता है यहाँ पे। यही चीज, यही लूप को आप अगर आप लाइफ में फॉलो करते रहे, बहुत सिंपल बात है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बट इट विल मेक योर लाइफ इजी। और आप कहीं ना कहीं अगर आप मेंटली एकदम फिट है, स्ट्रेस से ना आपका बैलेंस हो जाता है, तो आप किसी और की हेल्प कर सकते हो। और उसके अलावा छोटी छोटी ये चीजें हैं कि यू नीड टू टेक ब्रेक्स, टाइमली ब्रेक्स लीजिए। जब आपके घर में कुछ मुसीबतें हैं, स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो बी ओपन, टॉक टू योर सुपीरियर कि ये इशू हो रहा है, मेरी प्रोडक्टिविटी वैसे भी हैम्पर होगी, गिव मी 1 or 2 days ब्रेक एंड आई कम बैक, आई डू मोर। टॉक टू समवन, किसी से जरूर बात कीजिए, किसी से इस बारे में शेयर कीजिए कि ये इशू हो रहा है मुझे, व्हाट शुड आई डू। हैव अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। अभी कोरोना है, सारी चीजें, लोगों के रूटीन बिगड़ गए, स्पेशली बच्चों के। सुबह उठ के स्कूल जाना होता था, वहीं से शुरू हो गया, सारा रूटीन बिगड़ गया। बट ट्राई टू हैव अ रूटीन। कुछ चीजें हैं जो आपको रोज करनी है तो करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी को वैसी आदत होनी चाहिए, खाना, उठना, एक्सरसाइज, सोना, वो आपकी बॉडी और आपकी मेंटल हेल्थ, मेंटल वेल बीइंग के लिए है। स्लीप को हम सबसे ज्यादा बोलते हैं ना सैक्रिफाइस करते हैं, स्पेशली अभी जब ऑनलाइन सोशल मीडिया, इतना कुछ है पढ़ने के लिए, इतना कुछ है देखने के लिए, ऑनलाइन सीरीज है, हम मूवीज देखते रहते हैं, सीरीज देखते रहते हैं, यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस देखते रहते हैं रात के 1-2 बजे तक, और अगले दिन फिर हमारा सर भारी रहता है, परेशान और चिड़चिड़े होकर उठते हैं। पर हमें ये याद नहीं रहता कि रात को हम लेट सोए, हमने कितना स्क्रीन टाइम दिया अपनी ब्रेन को। जब आप एंड में रात को सोते तक भी मोबाइल देख के सोते हो, आपका ब्रेन बहुत एक्टिवेट रहता है, उसको स्टिमुलस मिल जाता है, वो एक्टिवेट रहता है, और सोने के बाद भी आपको काफी देर वो चीजें याद आती रहती है। आप सो के उठ जाते हो बट आपके ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला होता है, इसीलिए वो दिन आपका उतना अच्छा काफी बार नहीं जाता। देन यू कैन ऑल्सो हैव अ क्रिएटिव आउटलेट। आई एम श्योर आज आप टीचर्स हैं, बट अपने टाइम में आप में से काफी लोगों को पेंटिंग का, गिटार का, गाने का शौक रहा होगा, लिखने का शौक रहा होगा। बहुत लोग कविताएं लिखते हैं, बहुत से लोग बहुत सी चीजें, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, कुछ अलग ही उनकी हॉबीज होते हैं। बहुत से लोगों को गाना पसंद होता है, बहुत से लोगों की बहुत सी अलग अलग स्किल्स और माहिरताएं हैं, पर बड़े होने के बाद और हमारी जॉब्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हम वो सारी चीजें करना छोड़ देते हैं जो चीजें हमें खुशी देती थी। हफ्ते में 1 दिन निकालिए और अपनी कोई पुरानी हॉबी के साथ बैठिए। आपको लिखना पसंद है तो आप लिखिए, आपको गाना पसंद है तो आजकल तो इतने अच्छे अच्छे एप्स हैं जिनमें आप कैरियोके, वो म्यूजिक लगाकर आप गा सकते हो। एक गाना गाओगे, आपका स्ट्रेस चला जाएगा। देन स्पोर्ट्स, स्विमिंग, साइकिलिंग, साइकिलिंग इज द बेस्ट, मैं खुद करती हूँ। स्विमिंग है, बैडमिंटन, ये सारे जो स्ट्रेस है, ये सारे जो एक्सरसाइजेस ये आपके स्ट्रेस से लड़ने में आपकी मदद करता है, सारे नेगेटिव टॉक्सिन्स निकालता है। व्हेन यू स्वेट आउट यू फील लाइटर, एंड एक्सरसाइज से आपको फिजिकल बेनिफिट्स तो हैं ही। तो ये कुछ चीजें हैं, इनमें से आपको जो सबसे इजी लगे आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। आई एम श्योर एक्सरसाइज शायद बहुत लोग करते भी होंगे,
Now there is this breathing technique which is very very famous. बहुत से psychologists भी recommend करते हैं. That is 4-7-8 breathing technique. वेरी इजी, ये आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है. इवन इन स्कूल कॉलेज जब आपको अचानक से होता है ना, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें अचानक से हम पैनिक हो जाते हैं, हमें घबराहट सी होने लगती है, या कोई आने वाला है, कोई भी ऐसी सर्टन अलग अलग सिचुएशन में जब आपको ऐसा लगता है कि सांस फूल रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एक अलग रूम में जाइए, शांति से आप बैठिए या चेयर पे बैठ सकते हो. ऑल यू जस्ट हैव टू डू इज ब्रीथ इन फ्लो ऑफ 4-7-8. 4 के काउंट पे आपको नाक से लंबी सांस अंदर खींचनी है. जब आप सांस अंदर ले रहे हो ना, 1 2 3 4 गिनते हुए सांस लेना आपको, और वो सांस लेकर आपको मेंटली काउंट करो कि 4 तक लिया, ठीक है. उस ब्रेथ को पूरे जब अपने लंग्स में, बोलते हैं ना फेफड़ों में सांस जानी चाहिए, उसको आप 7 तक गिनने की कोशिश कीजिए. खींच के जबरदस्ती मत कीजिएगा कभी भी, शुरू में नहीं होगा. जो करते हैं शायद उनसे हो जाए, जिन्होंने नहीं किया है उनको छूट जाएगा, कोई बात नहीं. आप धीरे धीरे शुरू कीजिए, होल्ड करने की कोशिश कीजिए, और जब आप सांस छोड़ें तो 1 to 8 की गिनती पे उसको मुंह से आवाज निकालते हुए छोड़ें. ये प्रैक्टिस के साथ आएगा, पर अगर आप ये दिन में 3 से 4 बार भी रिपीटेशन में करते हो तो आपको बहुत हल्का महसूस होता है. दिस इज काइंड ऑफ अ मेडिटेशन, क्विक मेडिटेशन, क्योंकि 10-15 मिनट अगर आप खुद को रोज नहीं दे सकते, आधे घंटा आप सुबह उठ के नहीं बैठ पा रहे हो, तो ये चीज आप कर सकते हो. इवन मुंबई के लोकल ट्रेन में लोग ये चीजें करने की कोशिश करते हैं. ऑब्वियसली वहाँ शोर इतना होता है कि वो कर नहीं पाते, बट दे ट्राई टू डू इट, क्योंकि वो उनको मन की तसल्ली तो मिल जाती है. सो ये एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो आपको काफी जगह आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं. इट हेल्प्स यू टू रिलैक्स, और अगर आप ये रात को सोने के पहले करते हो तो आपको नींद भी अच्छी आती है. देन यू हैव टू डू इट एटलीस्ट 3 to 5 times. सो दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल. एंड अगर आपको कुछ और मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, बट इन दी एंड आई ऑलवेज से दैट यू हैव टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, बिकॉज नो वन एल्स विल डू इट फॉर यू. हम बड़े हैं, मुझे भी, मेरे लिए कोई और ये चीज नहीं करेगा. मुझे खाना बना के कोई और खिला देगा, भले ही आज मैं बीमार हूं तो, बट मेंटली खुद को मुझे खुद ही ड्राइव करना पड़ेगा. आज मैं 4 चीजें आपसे कहूंगी, शायद आपको उसमें से 2 चीजें अच्छी लगे, पर 2 दिन बाद आप मुझे भूल जाएंगे, मैं ये भी जानती हूँ. 2 दिन बाद जो मैंने यहाँ बातें कही, यू वोंट रिमेम्बर. वो रिमाइंडर आपको खुद को हमेशा देना पड़ेगा. सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल. एंड अगर किसी को कुछ पूछना है या किसी से कुछ अपना शेयर करना है, कोई चीज वो करते हैं, तो मोस्ट वेलकम. हेलो मैम. यस सर. मैम, दिस इज विदेश. हेलो अंदुरे. मैं ये पूछना, हाँ, मैं पता हाँ, चले कि वो सपोज स्ट्रेस में ड्यू टू एनी रीजन मींस लाइक स्टडी. हेलो सर आपकी वॉइस मैं ब्रेक. छोटे बच्चों के बारे में पूछ रहा था मैम. जी सर. अगर हमें पता चले कि अभी आ रही है मैम? आ रही है सर, एको हो रही है, गूंज रही है आपकी आवाज. ओके. मैं छोटे बच्चों के बारे में जानना चाहता हूँ मैम. अगर हमें पता चले कि वो स्ट्रेस में है तो हाँ. उस वक्त उनको कैसे हैंडल करना चाहिए? जी. किस एज के बच्चे की बात कर रहे हैं आप, टीनेजर्स की, उनसे भी छोटे? छोटे छोटे मैम, थर्ड स्टैंडर्ड. ओके. तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे हैं या आपके आसपास घर के बच्चे हैं, तो आपने अगर ये मेजर किया है कि वो स्ट्रेस, अभी कोरोना के टाइम पे तो खैर अच्छों को काफी चीजें ऐसी हो रही है, स्ट्रेस छोटे बच्चों, मेरी भी बच्ची है, उसमें भी मैंने ये चीज देखी है. वहां पे बात ये आ जाती है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो उसमें कब से हो रहा है, कितने दिन से हो रहा है. अगर कुछ दिनों से है, हाँ, आप पीरियड बता सकते हैं कि कितने टाइम से ऐसा महसूस हो रहा है आपको? हाँ, मतलब ऐसा लगता है. मतलब ऐसा लगता है, ऐसे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन फिर भी वो Exactly. बोर हो जाता है. हाँ. वहां पे देखिए, अब ये बहुत छोटी मतलब नॉर्मल सी बात है, बट जैसे मैं अपनी बच्ची का एग्जांपल देती हूँ, 7 साल की है, तो उसको अभी थोड़ी स्किन की सीवियर इशू हुए थे, और स्कूल नहीं है, और घर में वो एक ही बच्चा है. तो उसमें भी ये चीजें देखती थी मैं कि वो बहुत ज्यादा परेशान, बच्चे चिढ़ने लगते हैं ना, फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि बाहर नहीं जा पा रहे, खेल नहीं पा रहे, है ना, उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई है. तो उसके लिए यही करना पड़ता है कि एज अ पेरेंट्स
जी, एज अ पेरेंट्स हमें टाइम निकाल कर, मैं उसके साथ बहुत टाइम बिताती हूँ, पहले भी बिताती थी, बट अब मैं उसके साथ बैठ के मैं कलरिंग करती हूँ, उसके साथ बैठकर मैं कुछ कुछ वो टिक टैक गेम खेलते हैं ना बच्चे, क्रॉस जीरो वाला, मतलब छोटी छोटी चीजें ऐसी करने लगी। तो उसके बाद मैंने उसमें फर्क देखा, जो उसे करना पसंद है, और उसके लिए भी मुझे उसको पुश करना पड़ा कि मैं खुद कहती थी कि चलो खेलते हैं, तो उसे लगता था कि नहीं मम्मा, मतलब वो इतने इस हद तक बोर और निराश हो जाते हैं ना बच्चे, फिर उनका एनवायरनमेंट पूरा छिन गया, बाहर नहीं जा पाते हैं। तो मैंने वो शुरू किया। फिर शाम के टाइम हम मास्क लगाकर मैं उसे स्कूटर पे पूरी टाउनशिप में राउंड घुमा के लाती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा। आप या फिर जैसे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक दो चीजें बांट ले। बच्चों को वक्त देना पड़ेगा सर, क्योंकि ये जो टाइम है ना, अभी हम अपने हिसाब से हम ऑब्वियसली वक्त देते हैं, पर इस टाइम में मैं आपको बताती हूँ, इंडिया में अकेले 20% केसेस बोलते हैं मेंटल इलनेस के बढ़े हैं। जो लोग स्ट्रेस मेंटल हेल्थ जानते भी नहीं थे, उन्हें भी आज डिप्रेशन होता है। मुझे लोग बोलते हैं, एक टाइम पे जो लोग मुझसे कहते थे आप ये क्या लिखते हो, आज वो लोग मुझे बोलते हैं कि अब समझ में आता आप क्या लिखते हो। तो जो लोग ये चीज मानते नहीं थे उन पे भी हो रहा है। तो ये तो बच्चे हैं, उनको बाहर जाना, स्कूल, फ्रेंड्स, आज 4-5 महीने से सब कुछ ऑलमोस्ट छूटा हुआ है। तो उनके लिए बहुत बड़ा चेंज है। इस चेंज में हमें उनका साथ बहुत ज्यादा देना होगा। और यहीं पे आके रेजिलियंस बिल्डिंग की भी बात एक होती है कि ऐसे समय में हमें उन्हें कोप अप करना भी सिखाना हमारा काम बनता है। तो मैंने यही करना शुरू किया। मैं जब योगा करती हूँ तो मैं उसे बैठाती हूँ, छत पे चलती है, और मैं उससे एक वो दे देती हूँ कि चलो हम साथ में करते हैं, तुम भी करो, ऐसा नहीं। तो जब मैं उसे कमांड करती हूँ तो वो नहीं करेगी, पर मैं उसे कहती चल साथ में योगा करते हैं, तो वो आती है। चल इसका वीडियो बनाते हैं, तो उससे मजा आता है। भले वो वीडियो हमें कहीं शेयर नहीं करना है, पर बच्चे इंगेज रहते हैं ना, तो वो चीजों को भूलने लगते हैं। तो ये चीज मेरी बच्ची पर काम की, तो शायद आपके बच्चे पर भी करे। आप कोशिश कीजिए, इन केस कुछ नहीं लगता है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। Yes, ma'am. जी सर, Thank you. वेलकम वेलकम। Any more questions from the faculties? Okay, ma'am. या मैम। Now I request Professor Barkale sir to give vote of thanks. Thank you, Boris ma'am. Honorable trustees, respected principal sir, all HODs, staff members, and our most valued invited guest. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of SNGB College of Engineering and the MBA department, here together, extend a very hearty vote of thanks to Mrs. Priyanka Nair for sharing us valuable knowledge today. We are grateful to Mrs. Priyanka Nair for her efforts towards increasing awareness regarding stress management among our SNGB staff. Ma'am helped us to understand the concept of stress and its types, also to understand the effect of stress on human body, 5 A's of stress, and also some stress relieving techniques like 4-7-8 breathing techniques. Also, she made us aware of the importance of mental health in the present scenario, which will be helpful, especially in this COVID-19 pandemic situation. So I also wish to acknowledge our gratitude to all our trustees of our organization for their kind support. I would like to express our sincere thanks to our principal, Dr. M.D. Kokatis sir, who encouraged us for arranging this event. I also extend my thanks to all the staff members who have assembled over here. Also, Mrs. Mahale, Financial Planning and Audit Officer, Collector Office, Aurangabad, she has also attended this session. I would like to express our sincere thanks to Event Coordinator, Mrs. Priti Boraste Madam, HOD, MBA Department, Dr. A.R. Bora Sir, and all the MBA staff members for a smooth functioning of this event. Once again, I want to state that we all are most grateful to our resource person, Mrs. Priyanka Nair. We thank you for being with us this afternoon. It's been a great pleasure, ma'am. Thank you very much. And you, one more request to all the participants.
There is a feedback link shared in chat box by Dr. Andure sir. Please go through that feedback and respond us as soon as possible. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you, ma'am. So with the Thank kind permission of Principal Sir, I declare the session has ended. Thank you all of you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you, Priyanka. Thank you, ma'am.